of this webinar and address to all. I would like to invite Head of the Department of Psychology, Government Vidarbha Institute of Science and Humanities, Amravati, Dr. Shafiq Pathan. Dr. Shafiq, please start your welcome address. Pathan, please. Yes, sir, you are audible. You may start your... On the behalf of the Government Vidarbha Institute of Science and Humanities, Amravati, and the Department from dignitaries, speakers, participants, and organizing committee members to this national webinar on the mental health for all greater investment. Dear all, in modern time, mental health of the individuals is of the prime importance. With development in various sectors of human life, the psychological complexities of human life have increased. These complexities lead into disturbance of person's mental health. Disturbance may lead to severe consequences. It becomes difficult for a person to manage his interaction with others in a family, at work, workplace, in society, and his personal thought process. Present situation of COVID-19 pandemic has worsened the situations. Many people have lost their job, workers their work, and moreover, it has alienated people from one another. Therefore, discussing the issue of mental health is most urgent need of this hour. We are pleased with the response for our endeavor from all over India. The Government Vidarbha Institute of Science and Humanities, Amravati, established in 1923, is one of the oldest and premier academic institute of the Central Vidarbha. It is catering the educational name of the students from all over India since pre-independence period. The institute has the honor to have bright alumni, including 2 Chief Minister of the state, former Governor of the state, ministers, Police Inspector General of state, several acclaimed men of letters, doctors, professionals, etc. The institute has the long tradition of merit and achievement of natural beauty, great attraction for the local people. Psychology department of the institute is the only aided PG and research department in the jurisdiction of the Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. It is the oldest psychology department in central India. The department is a pioneer in promoting education in psychology and activities to have the aim at social outreach so that the psychological issues of the people are resolved. In of our own tradition, along with the Department of Lifelong Learning and Extension, who run the MA Counseling and Psychotherapy at Sant Gadge Baba University, Amravati, we have planned this national webinar which will help to the people in issues of mental health. We are very happy that we could get the concern of the stalwarts in the psychology. We have Professor Grishwar Mishra sir, Honorable former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, Professor Harpreet Kaur Madam, Professor in Psychology, Punjabi University, Patiala, and Dr. Pankaj Wasadkar, Associate Professor and Clinical Psychologist, Manas Clinic and Baba De-Addiction Center, Amravati, who will deliver their expert talk, looking into the response from the resource person and the participants, are sure that the aim of the webinar will be fulfilled. Once again, I welcome you all on this platform. Second session. In second session, we have Professor Harpreet Kaur from Punjabi University, Patiala as the speaker. She will be speaking on suicide prevention, need of the hour. I request Dr. Santosh Savdekar to introduce the guest for our second session. Savdekar sir, please. Alan. Yes, Srikanth sir, am I audible to you? Yes, sir. Savdekar sir, please. Good afternoon to all. It's a great pleasure for me to introduce our today's speaker, who is going to talk to us about the suicide prevention, need of the hour. This is the subject in which we should all be deeply concerned. Suicide is the most painful reality of human life.
families and dependents get devastated if attention has been a major concern for psychologists, or speaker, although having spent almost her entire career in psychology. Dr. Harpreet Kaur currently works as a chairperson and professor in the Department of Psychology, Punjabi University, Patiala. Madam does research in health psychology, applied psychology, clinical psychology, and the most recent research publication is moral identity and moral judgment of psychopaths in normal population. She is a consultant psychologist for Infosys for conducting workshop for employees and their families. Madam is trained by UN Advanced Trained Mental Professional in Asia, Pacific, and Eastern Europe. So, I welcome to Dr. Harpreet Kaur Madam for her talk. Thank you very much. Thank you, Dr. Parmeshwar sir. टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ठीक भी ले लिया और बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर दिया. इट इज अ प्लेजर. देखिए, मैं पटना में रहती हूँ, आप महाराष्ट्र में, और हम सब मिलकर बात कर रहे हैं. दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी का ही वजह है कि डॉक्टर शफीक ने से मिलवा दिया. आई थैंक डॉक्टर शफीक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है डॉक्टर मुरली और डॉक्टर रेड्डी की गाइडेंस में, जो आपने ये इनिशिएटिव लिया सबको इकट्ठा कर. मेरा जो प्रेजेंटेशन है, आज मैं आपसे सुसाइड, जैसा सर ने कहा, सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात करूंगी. मुझे बता दीजिएगा अगर आपको पीपीटी दिखना स्टार्ट हो जाए. पीपीटी दिख रहा है सर? Yes. Sorry, extremely sorry. जी सर. क्लियर है? क्लियर है सर? हाँ, क्लियर है मैडम, आप बोलिए. जी. सो जब हम मेंटल हेल्थ डे मनाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, तब सुसाइड की बात करना बहुत अहम बन जाता है फॉर 2 रीजंस. लास्ट ईयर WHO ने हमें कहा कि सुसाइड प्रिवेंशन और कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसको थीम बनाया. इस बार उन्होंने थीम को आगे लेते हुए ये कहा कि कम्युनिटी में हम कैसे सबके साथ कनेक्ट हों और सब इकट्ठे चल पाएं, उसकी बात करी. और आज जो मेरी प्रेजेंटेशन है, उसमें मैं इन दोनों चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी. जैसा सर ने कहा कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ, लेकिन साथ टीचर हूँ आप सब जैसे ही. और मेरा काम सुसाइड प्रिवेंशन और सुसाइड मैनेजमेंट में कुछ रहा है. पीछे हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर फार्मर सुसाइड पंजाब को हमने हैंडल किया, और हमारे साथ एक और कोपी आए थे जिन्होंने महाराष्ट्र को किया, और हमने दोनों स्टेट्स को मिलकर उसको ठीक करने की पूरा एम्फेसिस दिया, जो भी मैं आज इसके अंदर थोड़ा मेंशन करूंगी. जब हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं, अगला स्लाइड नहीं आ रहा है. जब हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं, तब हमारा गोल ये है कि सुसाइड होने तक का इंतजार ना हो, लेकिन हम पहले ही, हमारा साइकोलॉजिस्ट का गोल ये है कि जो अंधेरे में पड़ा है उसको लाइट की तरफ लेकर जाएं, जो डिस्पेयर में है, जो परेशान है, जो बहुत ज्यादा ये महसूस कर रहा है कि
सब कुछ उसके अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका है, उसके अंदर हम होप क्रिएट कर पाए। और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि सुइसाइड स्ट्रेट अवे नहीं रहती है, इसमें स्टेप्स रहते हैं। सुइसाइड तो आखिरी स्टेज है। शुरुआत होती है कि सुइसाइड की आइडिएशन आना शुरू हुआ, मन में इस तरह के ख्याल उठने शुरू हुए, कुछ इस तरह के महसूस होना स्टार्ट हुआ कि क्या मुझे अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए, क्या मुझे जी के करना क्या है, इस तरह का महसूस होना शुरू हुआ। ये आइडिएशन का शुरुआत है। फिर थ्रेट बनता है जब हम इनडायरेक्टली किसी को मैसेज देने की कोशिश करते हैं, अरे भैया मैं मर गया तो फिर मत कहना, हमारा तो अंत हो जाएगा। इस तरह के ख्याल देने शुरू किए और बोल में भी आ गया। नेक्स्ट आता है जब वो प्लानिंग करना शुरू करता है, यानी वो बात करता है पहले कि क्या दवाई से कोई मर सकता है, क्या ये पेस्टिसाइड कुछ हेल्पफुल रहती है, क्या ये पंखा चलता है। उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और फिर आता है अटेम्प्ट। यूजुअली पहले अटेम्प्ट में सुइसाइड कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो अटेम्प्ट एक मार्जिनल छोटा अटेम्प्ट रहता है, जिसमें इट्स अ क्राई फॉर हेल्प कि देखिए अब मुझे लगता है मेरे बस से सब कुछ बाहर हो गया है, कोई मुझे समझो, कोई मेरी हेल्प करो। अटेम्प्ट साइकोलॉजिकल तरीका है इस डिस्पेयर को बोलने का। लेकिन हम यहाँ तक का इंतजार क्यों करें? हम प्लानिंग तक भी पहुंचने क्यों दें? हम थ्रेट भी देने तक क्यों वेट करें? शायद जैसे ही हमें कहीं से थ्रेट सुने, हम साथ के साथ उसको पकड़ लें और हम आइडिएशन को ही खत्म कर दें। उनके जो विचार इस तरह के अंत आ जाने के आ रहे हैं, वहीं पर पकड़ लें। इसलिए मेरा जब ये पूरा आज का जो सेशन है वो सुइसाइडल आइडिएशन पर फोकस करेगा, क्योंकि हमारा आपका साइकोलॉजिकल जिम्मेदारी ये है कि जब आइडिएशन पहुंचे वहीं पर हम उनकी हेल्प करनी शुरू कर दें। जो सुइसाइड है वो दो तरीके से रहता है। एक तो सुइसाइड है जो इंपल्सिव एक्ट है, एकदम से बाय चांस गुस्सा आया, किसी से लड़ाई हुई और मैंने अटेम्प्ट कर दिया। दूसरा सुइसाइड है जो क्रॉनिक आइडिएशन के हिसाब से सोच विचार कर हुआ है। इंपल्सिव एक्ट को हम बहुत बार प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन क्रॉनिक को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्रॉनिक फर्दर दो तरह के रहते हैं, एक वो जो फिर मुझे ख्याल आ जाते हैं, और एक वो जो ख्याल आते हैं और फिर जाते ही नहीं, कम ही नहीं होते। तो ये जो अंदर मेरे वेव्स उठती हैं, ये जो एक अंदर ही अंदर मेरे एक थ्रेट आ जाता है कि मैं बस इसको खत्म कर डालूं, ये मेरे लिए और आप के लिए एज साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को हमने पकड़ना है। क्यों? क्योंकि जब क्रॉनिक सुइसाइडल आइडिएशन हो गई है, ये हमें ये सिग्नल देती है कि ये आदमी, ये इंसान, ये औरत, ये बच्चा अब डिस्पेयर में है। उसको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि बस इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसमें कभी कुछ बदलाव आने वाला ही नहीं है। वो दिल से, आत्मा से, विचारधारा से बिल्कुल पेनफुल महसूस कर रहा है। साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल बॉग डाउन है। और जब ये बहुत देर तक इस तरह से नेगेटिविटी, इंटरनल नेगेटिविटी रहती जाए, तब क्या आता है कि वो डिसेंसिटाइज हो जाता है कि मरने में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो हमें खौफ आता है, जरा सी पेन भी होती है तो हमारा इंस्टिंक्टिव जो रिस्पॉन्स है, हमारे पास थैनाटॉस है तो वहां पे हमारे पास विश टू लिव है। लेकिन इन लोगों में जो क्रॉनिक सुसाइडल आइडिएशन की तरफ चले जाते हैं, उनमें डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, जिस वजह से उन्हें सेल्फ हार्म में कुछ बुराई नहीं लगती। और इसीलिए ये जो सेल्फ हार्म की नेगेटिविटी है, उस वजह से ये लोगों से भी दूर हट जाते हैं। दूर हटकर अपने रिलेशनशिप्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है और उनके हर एरिया में उनकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है। और ये एक साइकिल बन जाता है। साइकिल इस वजह से कि जब मेरा किसी एरिया में काम अच्छा नहीं होगा
तो मुझे अपने बारे में और होपलेसनेस और डिस्पेयर होगा, और जब डिस्पेयर और होपलेसनेस होगा तो मैं और इम्यून होता चला जाऊंगा सुइसाइड के विचारों के प्रति, और मैं इसको पकड़ते पकड़ते हुए सुइसाइड की तरफ और स्टेप्स लेना शुरू कर दूंगा। DSM-5 जो है वो कहती है कि क्रॉनिक सुइसाइडल आइडिएशन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में, मूड डिसऑर्डर में, सब्सटेंस अब्यूज के लोगों में और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लोगों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इन लेबल्स पर ना जाएं, हम साइकोलॉजिस्ट की तरह इसको हैंडल करें। हम ये समझें कि साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स क्या है, चाहे कोई भी डायग्नोसिस हो, ये लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है जिसको हम पकड़कर उनको सुइसाइडल आइडिएशन से बाहर निकाल सके। क्योंकि जब तक हम ये नहीं उसकी तह तक, उसकी साइकोलॉजिकल तह तक जब तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम उनको बाहर नहीं निकाल सकेंगे। सिर्फ एक डायग्नोसिस दे देना वो साइकेट्रिस्ट के पीछे लगने की बात है। तो आप और हम एज साइकोलॉजिस्ट किस पर ध्यान दें? हम इस पर ध्यान दें। कुछ रिव्यू से उठाया है, ये वो लोग हैं साइकोलॉजिकली जो एवर्सिव मेंटल स्टेट जो है, एंजाइटी की, एंगर की, लोनलीनेस की, क्या आपको नहीं होती? होती है। मुझे नहीं होती? होती है। हर एक को होती है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी घबराहट को, अपने एंगर को, अपनी लोनलीनेस को। और क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर पाते, इनका कोपिंग किस तरह का है? आप और हम ये कहते हैं कि जो चीज मेरे से सहन नहीं हो रही, इसका कुछ हल निकालो। लेकिन ये लोग वो हैं जिनको आदत है अवॉइडेंस कोपिंग की। ये लोग वो हैं जो इस एंगर और लोनलीनेस का हल निकालने के बजाय उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है। साइकोलॉजिकल स्किल जिसमें जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको वो पकड़े और उसका हल ढूंढे, ये उनमें बहुत एक्टिव नहीं है। और साथ के साथ आप और हम, जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो हमारे सहनशीलता से ऊपर हो, जो हमारी मैनेजमेंट के बियॉन्ड हो, जो हमारी कोपिंग के ऊपर हो, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दोस्त से, परिवार से, किसी प्रोफेशनल हेल्प ले ले। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स निभाने नहीं आ रहे हैं, नहीं तो कोई हेल्प कर देता। सो साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स उन लोगों के क्या है जो सुइसाइड आइडिएशन की तरफ, क्रॉनिक बनने की तरफ, और फिर सुइसाइडल थ्रेट बनकर, सुइसाइडल प्लान बनाकर सुइसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाएंगे। उनमें क्या है? उनमें अवॉइडेंस कोपिंग है, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टॉलरेशन फॉर नेगेटिव इमोशंस कम है, और उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस बिगड़ गए हैं। इनफैक्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज ये कहती हैं कि अगर एक बार किसी को सुइसाइडल थॉट आया है, तो अगली बार जब भी उसको थोड़ी सी भी सैडनेस होगी, तो सुइसाइडल थॉट आने का बहुत बढ़ जाता है चांस। यानी इस बार तो बहुत बड़ा मुद्दा था, इस वजह से मुझे सुइसाइडल आइडिएशन आई थी। लेकिन अगर एक बार सुइसाइडल आइडिएशन आ गई, तो अगली बार छोटे मुद्दे पर भी, छोटी सी बात पर भी मेरा पॉसिबिलिटी ऑफ सुइसाइडल आइडिएशन बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से आप और मैं, अगर हम सुइसाइडल प्रिवेंशन का काम करना चाहते हैं, तो हमें इस सोच को पकड़ना पड़ेगा। हमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह ध्यान देना पड़ेगा। हमारे आसपास के लोगों की कोपिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, और हमारे आसपास के लोग जो डल और लो फील कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बेटर हो सके। इनफैक्ट इंटरपर्सनल बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। रीसेंट रिसर्च ये बात करती है कि जिन लोगों में सुइसाइडल आइडिएशन आता है, उनमें दो तरह के इंटरपर्सनल चीजें भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। वो क्या है? एक है थ्वाटर्ड बिलोंगिंगनेस, यानी उनमें बिलोंगिंगनेस की कमी रहती है, उनमें कुछ रुकावट रहती है।
मैं कौन हूं? मैं हरप्रीत हूं। ठीक है, मैं हरप्रीत हूं और मैं क्या हूं? मैं एक औरत हूं, मैं एक माँ हूं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक पंजाबी हूं, मैं एक इंडियन हूं। ये सब क्या है? ये मेरे रोल के बेस पर मेरी आइडेंटिटी के पार्ट है। ये सब मेरी बिलोंगिंगनेस का एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो सुइसाइडल लोग रहते हैं उनमें ये बिलोंगिंगनेस कम हो जाती है। तो मुझे सुइसाइड जब करना होगा तो मुझे क्या याद आएगा? हरप्रीत कर, साइकोलॉजिस्ट मत कर, मां कर, बेटी मत कर, टीचर मत कर, साइकोलॉजिस्ट मत कर, इंडियन मत कर, पंजाबी मत कर, क्योंकि ये सब चीजें मेरा आइडेंटिटी का पार्ट है। लेकिन ये सब मेरे इंटरपर्सनल रिलेशन पर बेस्ड है। रिसर्च ने ये शो किया है कि जो क्रॉनिक सुइसाइडल आइडिएशन के लोग रहते हैं उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत कम हो जाती है और साथ में उनकी परसीव्ड बर्डनसमनेस है। उन्हें लगता है मैं दूसरों के ऊपर बोझ हूं। हरप्रीत, मैं दूसरों पे बोझ हूं। मैं औरत जात दूसरों पर बोझ हूं। मैं साइकोलॉजिस्ट दूसरों पर बोझ हूं। अगर ये फीलिंग मुझे आने लग जाए, यानी इसका ऑपोजिट जो पार्ट है कि हाँ मेरा एक स्पेस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जगह है जिसके बेस पर मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हूँ, मेरा कुछ रोल है जिसको मैं निभाती हूँ, अगर ये फीलिंग आ जाए तो मैं सुइसाइडल हो ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर डायग्नोसिस लेने के बजाय लेट्स लुक एट एंड फोकस ऑन एज साइकोलॉजी ऑन पीपल्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। इनफैक्ट रिसर्च ये बताती है कि बफर्स है, वो बफर्स क्या है? सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा बफर है और मेरा सेंस ऑफ पर्पस और मेरा वैल्यू सिस्टम मेरा दूसरा बफर है जिसको मैं जरूर अपने पास लेकर चलूं। और ये जो रिलेटेडनेस का बफर मुझे क्रिएट करना है उन लोगों के लिए जिन लोगों में ये कम है, उसके लिए मैं एज साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है मैं और आप दो लेवल्स पर काम करते हैं। एक लेवल है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, दूसरा है साइकोलॉजिकल थेरेपी। ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या है? पिछले साल यूएन ने, WHO ने इसको बहुत प्रोपेगेट किया। आप WHO के अगर वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर इस पे बहुत मटेरियल डाला। कुछ नहीं है, जिस तरह से किसी को चोट लगे तो उसका पहले मैं पट्टी बांधता हूँ फिर डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ये साइकोलॉजिकल पट्टी बांधनी है जो कि इवन नॉन साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल भी कर सकता है। आप अपने जो भी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में है, उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड सिखाएं ताकि वो आगे सबके प्रति ये कर सके। ये है क्या? एक फीलिंग देनी है दूसरे इंसान को, किसी भी दूसरे इंसान को, कि वो सेफ है, वो मैनकाइंड में है, वो भी एक ह्यूमन है, मैं भी एक ह्यूमन हूं, हम दोनों सेफ हैं क्योंकि हम दोनों इकट्ठे हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूं, तुम बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड हो, इसको रियलाइज करो। 1 मिनट लंबा सांस लो, शांत हो जाओ, होप अपने आप आएगी। अगर कुछ फिजिकल हार्म हो रहा है तो मैं उसको हेल्प आउट करूं, उसको साथ में इमोशनल सपोर्ट दूं। कई बार बोलना भी जरूरी नहीं रहता, बस हाथ पकड़ना जरूरी रहता है। कई बार सिर्फ ये कहना मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तुम जाओ जाकर जो मर्जी करो, ये कहना ही बहुत है। ये फील करना किसी और को कि तुम कर सकते हो, बस ये इतनी सी चीज है। इसके साथ आता क्या है? एंगेजमेंट। इसके साथ क्या आता है? कंफर्ट। इसके साथ क्या आता है? कोलैबोरेशन। इसके साथ क्या आता है? सेल्फ एफिकेसी। मैं कर सकता हूं, इसीलिए तू और मैं मिलकर ग्रुप एफिकेसी। और जब ग्रुप एफिकेसी होगी तो होप होगी। जब होप होगी तो वहां पर सुइसाइडल आइडिएशन तो आ ही नहीं सकता। सो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड सबसे पहली बात है जो हम आप सभी, ट्रेनिंग की नहीं जरूरत, बस इंसानियत की जरूरत है, ये अगर कर लें और आसपास के लोगों के प्रति कनेक्टेड रहें। मैं अपनी दुनिया में अपने फोन में इतना व्यस्त हूं, मुझे पता ही नहीं मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है,
तब मैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड नहीं दे पाऊंगा। कनेक्टेड रहूं, दूसरों के इंसान के साथ मैं कनेक्टेड रहूं, बस इतना ही चाहिए। और WHO ने और हमने एज अ प्रोजेक्ट, जो मैंने कहा कि महाराष्ट्र में और पंजाब में मिलकर हमने फार्मर्स की सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए पिछले 3 साल में जो काम किया, वो कॉन्सेप्ट है PSV का, पीयर सपोर्ट वॉलंटियर। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं वॉलंटरली क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने साथ के लोगों को, जो पीयर्स हैं मेरे, चाहे हम उम्र हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, मेरे साथ के लोग हैं, उनको मैं सपोर्ट दे सकूं। और ये सपोर्ट WHO कहता है कि बहुत से मॉडल हैं इसमें, फेस टू फेस भी है, फोन पे भी है, मेंटर बन के भी है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बनकर भी है, वेब ईमेल पे भी है। बस एक चाहत चाहिए, बस एक कनेक्शन बनाने की जरूरत है। और ये जो पीयर सपोर्ट है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ एम्पथी दे रहे हैं। तुम्हें जो लग रहा है मुझे भी महसूस होता है, कोई बात नहीं, जो तुम निकल रहे हो उससे मैं भी निकला हूं, हम तो मिलकर ये संभाल रहेंगे। एम्पावरमेंट है कि कोई बात नहीं। क्या पहले जमाने में साइकेट्रिस्ट हर तरफ आकर बचाते थे? नहीं, हमारे गांव का, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मंदिर का, सभी मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे, ये एम्पथी ले आएंगे, ये पीयर सपोर्ट के लिए वॉलंटियरिज्म वापस अपना ले आएंगे, एक सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होकर नहीं, बस इंसान होकर, तब होगा क्या, स्ट्रेस के लिए हम इनोक्यूलेट होंगे। हम वो लेते हैं ना, पी लेते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं और फिर हमें पोलियो नहीं होता, ये हमारे साइकोलॉजिकल ड्रॉप्स है। बचपन से अपने बच्चों को सिखाएं, हम खुद इस पर जी कर देखें, पीयर को सपोर्ट प्रोवाइड करें, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड करें, ना डिप्रेशन होगा, ना एंजाइटी होगी, ना सुसाइडल आइडिएशन होगी। हाँ, ये करते हुए फिर भी अगर कोई हमें दिखे जो सुइसाइडल आइडिएशन की तरफ पूरा क्रॉनिक और अक्यूट में पहुंच गया है, तब कुछ टिप्स हैं जो हमें मन में ध्यान में रखनी है। ये टिप्स भी शुरुआत की हैं, फिर हम CBT की बात करेंगे। हम बहुत बार बड़ी बड़ी थेरेपीज की बात शुरू से ही करनी शुरू कर देते हैं। पहली बात है हम सुइसाइडल आइडिएशन पर पकड़े, दूसरी बात है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे, तीसरी बात है पीयर सपोर्ट वॉलंटियरिज्म लेकर आए, अब चौथी बात ये है फिर हम डिफरेंशिएट करें। ये जो सुइसाइडल आइडिएशन का इंसान मेरे पास आया है, क्या ये अक्यूट है, बस एक कोई मुद्दा अभी उठा है उसकी वजह से है, कि क्रॉनिक है? क्योंकि उन दोनों को हैंडल अलग तरह से करना है। क्रॉनिक को हमें लॉन्ग टर्म थेरेपी देना है, अक्यूट को हमें क्राइसिस इंटरवेंशन देना है। बहुत बार यहाँ पर इवन अच्छे प्रोफेशनल गलती कर जाते हैं और इस तरह से हम अपना क्लाइंट खो बैठते हैं। दूसरा जो टिप है, सो पहले डिफरेंशिएट किया, फिर एक पावर स्ट्रगल में ना पड़ो। अरे आए वो तो मलहम लगाकर भेजेंगे, तुम जाते हुए ये कहकर जाओ बस मैंने सोचना बंद कर दिया सुइसाइड के बारे में। देयर इज नो हरी। ये तो आप गलत पैच लगा दोगे, जब तक उसको पूरी तरह से उस चोट को सही नहीं किया, उसको बंद करने की कोशिश मत करें। दूसरा, जहां तक हो सके फैमिली को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप और हम 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकते, और उसके वो जो उतार चढ़ाव, जो उसके अंदर टर्मोइल है, जो वो पानी की जो लहरें हैं जो ऊपर नीचे हो रही हैं, वो बहुत बार होंगी, उस वक्त फैमिली ही हेल्प कर पाएगी। मैं बहुत ज्यादातर फैमिली को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड्स के लिए साथ के साथ को थेरेपिस्ट बना लेती हूँ। साथ के साथ हम ये असेसमेंट करें वो सुइसाइडल है, सुइसाइडल आइडिएशन की तरफ है, क्या वो पास्ट अटेम्प्ट कर चुका है, ये हो गया। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सेप्ट करें और क्लाइंट को एक्सेप्ट करवाएं कि उसको इस तरह के ख्याल आ रहे हैं और वो सही नहीं है लेकिन है। डिनायल से निकालें, क्योंकि बहुत बार सुइसाइड इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि अभी हमारा क्लाइंट डिनायल में रहता है। जब उसको डिनायल से निकालेंगे, उसकी एक्सेप्टेंस तक ले आएंगे, तब वो सेल्फ केयर भी कर लेगा।
कुछ हद तक परिवार, कुछ हद तक आप, कुछ हद तक पीयर सपोर्ट वॉलंटियर, और कुछ हद तक वो खुद, क्योंकि हमारे सब में, फ्रॉइड ने हमें समझाया है, सब में डिजायर टू लिव है, हम सब की नीड फॉर सर्वाइवल है, हम सब में फाइट की इंस्टिंक्ट है, हर बार फ्लाइट नहीं रहता है। और इसमें पावर स्ट्रगल को नहीं आने देना, टेबल से सिर्फ हटा देना, डिनाइल में ले जाना गलत है। सो हम ऑप्शंस ढूंढते हैं, हम उसको उसकी तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि फैमिली को इन्वॉल्व करना है, लेकिन फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए साथ में मैंने डाला इफ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर कई बार मैल प्रैक्टिस के भी हो जाते हैं, कई बार फैमिली ही वजह रहती है, तो उनको इंक्लूड करने से वजह को हम और ज्यादा बढ़ा देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको पहले प्रॉस एंड कॉन्स को दोनों को असेस कर फिर फैमिली में से इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करें कि कौन होगा जो मेरा पीयर सपोर्ट वॉलंटियर बनेगा, फैमिली सपोर्ट बनेगा, मेरा साथ में रहते हुए को थेरेपिस्ट बनेगा। सो जाने पहचाने चलते चलते इनफॉर्मल फंक्शनल एनालिसिस भी हो गया। हर बार पेपर पेंसिल लेकर फंक्शनल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, चेन एनालिसिस भी हो गया। ये सब करते हुए जरूर क्यूरियस हो, जरूर सब कुछ जाने, लेकिन जजमेंटल ना हो। यानी ये नहीं कहना ये तो गलत है, ये तो सही है। हम ये कहेंगे अच्छा ये हो रहा है, हम जानना चाहते हैं, पर हम उस पे सही और गलत का नहीं लगाना है। बिकॉज बहुत बार वो भी ऑलरेडी जो क्लाइंट है, जो सुइसाइडल लोग हैं, वो जजमेंटल हैं, इसीलिए वो इस तरह से महसूस कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा अंत हो गया, सब कुछ खत्म है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब गलत है। ऑल और नन थिंकिंग तो रहती नहीं है। अगर हम जजमेंटल हो गए तो हम उनकी ऑल और नन थिंकिंग को और पक्का कर देते हैं, वो नहीं होने देना है। हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करते हुए उसकी सेल्फ क्रिटिकलिटी और उसकी भी जो जजमेंटल है उनको ऑलरेडी उसको महसूस कराना शुरू कर देंगे। तो कॉग्निटिव एलिमेंट को हम निकाल नहीं सकते। सीबीटी करें ना करें, सुइसाइड आइडिएशन को अगर पकड़ना है, क्रॉनिक सुइसाइड को खत्म करना है, तो जो कॉग्निशन है उसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। और हमें मालूम है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मोस्ट सूटेबल है, रिसर्च ने हमें बता भी दिया। और मोर इम्पोर्टेंटली ये जो सेल्फ क्रिटिकलिटी और जजमेंट वो अपने ऊपर कर रहा है, परफेक्शनिज्म जो लेकर आ रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सो उसको पकड़ना है, जितनी जल्दी पकड़ लेंगे, जितनी जल्दी उसको इस लेकर आएंगे कि भैया तुम जजमेंटल हो रहे हो, भैया कहीं तुम ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल तो नहीं हो रहे, भैया कहीं तुम परफेक्शनिस्ट तो नहीं हो रहे, क्या ये बहुत ओवर तो नहीं हो रहा, क्या तुम्हारे आसपास के लोगों में भी ये छोटी मोटी चीजें हैं, या सिर्फ तुम अपने पे ही ये इल्जाम लेते चले जा रहे हो। तो फॉर्मल थेरेपी शुरू होने से पहले ही डीकैटास्ट्रोफाइजिंग तो स्टार्ट हो गई। आप सबको मालूम है, सिर्फ मेरे कमरे में बिजली ना हो तो बहुत दर्द होती है, घर में मेरे में ना हो लेकिन अड़ोस पड़ोस में हो तो भी दर्द होती है, पता चले पूरे शहर में नहीं है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं भैया, जी लेंगे बिजली के बिना। यही डीकैटास्ट्रोफाइजिंग है। जब मुझे लगता है कि मैं पकड़ा गया तब मुझे बहुत पेनफुल है, जब मुझे लगे कि औरों में भी हो सकता है तो वो डीकैटास्ट्रोफाइजिंग हो गई। सो जो इंटरवेंशन देनी है वो हम एट प्रेजेंट उनको एंगेज करके करेंगे। होपलेसनेस और बर्डनसमनेस और डिस्कनेक्ट को, जो मैंने थॉट और बिलोंगिंगनेस की बात करी थी, उसको इवैल्युएट करेंगे और उसको वहीं से आगे उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना शुरू करेंगे। सुइसाइडल थॉट्स को एक्नॉलेज करेंगे, है डिनाइल खत्म कर दिया, सुनेंगे। मैं सिख हूं, हमारे जपजी साहब बहुत मशहूर है, वहां पर हमारे गुरु नानक बहुत समझाते हैं कि क्या मानना है, भगवान की बात को कैसे मानना है। लेकिन वहां पर वो सब शुरू करने से पहले वो खूब सारा सुनिए करते हैं। सुनिए सिद्ध बीज सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। वो कहते पहले सबकी सुनो फिर करने की बात करो। यहाँ पे अपने क्लाइंट को पहले सुनो और फिर
उसको हमारी कोशिश रहती है जल्दी जल्दी ठीक कर दे, इसलिए पैच अप कर दो। नहीं, पहले लिसन करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर फीलिंग्स को समझेंगे, उनकी एक्सपीरियंस को महसूस कर पाएंगे, तभी फिर हम उनके इंटेंट को समझ पाएंगे। ये क्यों कर रहा है, कैसे करेगा, कब करेगा, तभी पता चलेगा जब हम उनको सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे। और वो पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। तभी हम उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि रिस्क कितना है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो हो सकता है हम हॉस्पिटलाइजेशन भी करें। फैमिली को तभी बताएंगे कि उससे कार की चाबी ले लो, चाकू हटा दो, दवाइयां हटा दो, तभी कर पाएंगे ना। बफर्स हम तभी ढूंढ पाएंगे। कौन वहां पर सपोर्ट करेगा? जब मुझे एकदम से वो सुसाइडल आइडिएशन मुझे हावी हो, मुझे पकड़ ले, जकड़ ले, तब उस वक्त क्या बफर होगा? मैं सुनूंगा अपने क्लाइंट की जिंदगी और उसके आस के सिचुएशन, उसके कंटेक्स्ट को समझ पाऊंगा, तभी मैं उसको बफर भी बता पाऊंगा। और जब मैं बफर बता दिया, जब कैपेबिलिटी समझ ली, तब मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा और तभी वो प्रिपेयर होगा, तभी उसके रिसोर्सेस को मैं पकड़ पाऊंगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये मेंटल हेल्थ अभी समिट हुआ था अगस्त में, ये वहां से जो निकल कर आया पूरे समिट का निचोड़, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहीं से ये निकल कर आया कि हम कुछ बड़ी गलतियां भी कर लेते हैं। हम बहुत बार सुपरफिशियल रीअश्योरेंस देते हैं, जो हम अपनी तरफ से तो उनको मलहम लगा रहे होते हैं, लेकिन जब उनको रियलाइज होता है कि जो आपने कहा वो तो हुआ नहीं, तब उन्हें लगता है सब झूठ है, सब अंत है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को अपनी भी, और जी जी क्या बोला जी? सॉरी, मैं वापस 1 मिनट। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे जी? किसी का कोई कमेंट था? ओके, बाद में फिर सुन लेंगे, या चैट में आप डाल दीजिए तो चैट से देख लेंगे। जी हेलो, हेलो, हेलो। मैडम बोलिए, आप बोलिए मैडम। जी जी, कंटिन्यूड है ना? जी, मुझे लगा जी कि जी शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ओके नहीं ओके जी ओके, स्टॉप शेयरिंग, कैंसिल। जी, सो मैं इस तरह से, सो रीअश्योरेंस जो है वो सुपरफिशियल और अधूरी नहीं करनी है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अपना प्रोफेशनलिज्म को छोड़ना नहीं है। बहुत बार प्रोफेशनलिज्म में हम उनको फोन नंबर दे दिया, घर पे बुला लिया, उनके साथ रिलेशन इस तरह का बना लिया। वो अपनी लिमिट्स को, एथिकल कंसर्न्स को याद रखने की जरूरत है। बहुत बार हमारी असेसमेंट अगर अधूरी हो तो गड़बड़ रह जाती है। प्रेसिपिटेटिंग ऑफ इवेंट को अगर हम ना समझ पाए तो कई बार हम ट्रिगर नहीं समझ पाते, कई बार हम पैसिव हो जाते हैं, या फिर उनको ये लगना शुरू हो जाता है अब डॉक्टर को मिल लिया ना, छू मंतर कली कलंतर, वो कुछ छड़ी करेगा सब ठीक हो जाएगा। और ये उनको रियलाइज करना जरूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट ने खुद एफर्ट करना है, चेंज तो उसको खुद ही लानी पड़ेगी। सो डायरेक्टेडनेस हम बहुत बार अवॉइड करते हैं, लेकिन सुइसाइड में कई चीजों पर हमें डायरेक्टेड रहना पड़ता है। जैसे कि तुम ये करोगे, तुम्हें अगर अटेम्प्ट आ रहा हुआ तो तुम इसको फोन करोगे, उस वक्त तुम ये नहीं करोगे। कुछ डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियरली असेसमेंट के बेस पर डिफाइन करने जरूरी हैं। कई बार जब हम एडवाइस जो दे रहे रहते हैं वो इम्प्रैक्टिकल, वो क्लाइंट के कंटेक्स्ट में नहीं होती है। हमने उससे कहा कि तुम उस वक्त ना ऑनलाइन हो जाना, भैया उसके पास नेट पैक है, उसके पास क्या उस तरह का फोन है, क्या वो पॉसिबिलिटी है? सो इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हो, आपका सही है, डॉक्टर सतीश ने यहाँ पर डाला जेनेटिक एस्पेक्ट। देखिए, जेनेटिक एस्पेक्ट को मैं आज इस प्रेजेंटेशन में बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ। आपकी बात सही है कि वो प्री डिस्पोजिशन है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं
कि जेनेटिक को मैं बदल नहीं सकती हूँ एज साइकोलॉजिस्ट, तो क्या मैं उनको छोड़ डालूं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है? नहीं, मुझे ये लगता है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है उसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, डेफिनेटली। उसका जो इंटरनल बफर है उसको इनहैंस करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली। लेकिन हमारा रोल जेनेटिक के ऊपर नहीं है, हमारा रोल इधर ज्यादा है। इसको समझकर जेनेटिक के बेस पर आपने बिल्कुल सही कहा, हमें डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उन इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको बीच में लेकर आना पड़ेगा और वो मेरी असेसमेंट का मेजर पार्ट रहेगा। एक मिथ है, हम सब बहुत बार कह देते हैं कि सुइसाइडल लोग जो बहुत वीक हैं, शायद जो प्रीडिस्पोज्ड हैं शायद वो वीक होंगे, लेकिन कई बार एक्चुअली बहुत स्ट्रगल कर स्ट्रेंथ रखकर, करेज निभाते हुए शायद वो वहां पहुंचे हों। इस चीज को हमें जरूर रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करना है और क्लाइंट को भी ये रियलाइज करवाना है। क्यों? क्योंकि कई बार ये हमारी रियलाइजेशन के साथ वो जो उसकी पास्ट स्ट्रेंथ और पास्ट करेज थी ना, उसका एक और बूस्ट अप हो जाता है। तो उसको एक्सेप्ट करना और सिर्फ वीक ना समझकर चलना बहुत जरूरी है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंटेजियन इफेक्ट। खास करके मीडिया की बात सर कर रहे थे पहले, हमने यहाँ पर और महाराष्ट्र में जो फार्मर्स पे काम किया, मेजर ट्रिगर, एक मेजर प्रेडिक्टर जो निकला वो था कि मीडिया में किस तरह से वो प्रोजेक्ट किया गया। मीडिया को छोड़ो, परिवार में कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, तू तो बस खत्म है, तू तो इसका योग नहीं है। जो एक ने किया, दूसरा उसको देखकर हमें पता है कि वाइकेरियस लर्निंग हो जाती है। जहां वाइकेरियस लर्निंग पॉजिटिव इवेंट्स की रहती है, वो नेगेटिव इवेंट्स की भी रहती है। एक जगह, एक गांव में जब एक फार्मर सुइसाइड करता है तो वहां पे एकदम से बढ़ जाता है इंसिडेंस, क्योंकि कंटेजियन इफेक्ट साथ में है। इसलिए उसके प्रति भी ध्यान रखें। जब हमारा क्लाइंट आया है उसका कंटेक्स्ट समझकर वहां पर और लोग जो एट रिस्क है उनको पहचाने, ब्लेम ना करें, कम्युनिकेशन ऑन रखें। सर मेरे पास और कितना टाइम है? मैं उतना फास्ट कर लूंगी। सर मेरे पास कितना टाइम है मुझे बता दीजिए, मैं वो उतना इलेबोरेट करूंगी, जल्दी फास्ट कर दूंगी। सर मैडम आपको कितना टाइम लगेगा मैडम? सर आप मुझे बता दीजिए, जितना बताएंगे मैं उतने में पूरी बात कर लूंगी। सर सांगायचं सर कितने बजे तक? अभी 2:05 हुआ है, कब मुझे एंड करना है मैं तब एंड कर। मैडम एक 5-10 मिनट। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं 5-10 मिनट में वाइंड अप, 2:15 तक वाइंड अप कर देंगे। सो इस तरह से हमें लीगल इश्यूज एज क्लिनिशियन, एज साइकोलॉजिस्ट, आप हमको अपनी सेफ्टी भी रखनी है, क्योंकि देखिए ये याद रखिए लिमिटेशन है। इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर गुड एफर्ट्स, इट इज पॉसिबल कि सुइसाइडल आइडिएशन इंटेंट बनेगा और जाकर वो अटेम्प्ट भी हो जाएगा। इट इज पॉसिबल कि उसने इंटेंट नहीं था तो उसका पर एक्सीडेंटली उसने लिया, गोली खाया, उसको लगा कि 2 लिया है, गलती से उसने 4 ले लिया क्योंकि पोटेंसी था, वो हो गया। नोइंग ऑल दैट, अपना सेफ्टी को भी मेंटेन रखना जरूरी है। उस वजह से रिकॉर्ड कीपिंग और फैमिली के साथ कांटेक्ट और अपनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी के एस्पेक्ट्स हैं वो रखना जरूरी है। एक बात और, जब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक मुझे मिला, इनफैक्ट ये जो समिट हुआ था, मैंने आपको बताया, ये इंटरनेशनल सुइसाइड समिट था, मैंने अभी अटेंड किया अगस्त में। वहां पर ये इसके बारे में बात हुई, कहते जब कोई सुइसाइडल आइडिएशन रखता है या अटेम्प्ट करता है ना, वो अपने सिग्निफिकेंट अदर्स को अपनी इमोशनल क्लोजेट बना लेता है। यानी वो बहुत बार या तो ब्लेम
डालता है या उनको अपने ऊपर हावी होने देता है। सो जो मैं इंटरपर्सनल को फिर बोल रही हूँ, वो दोनों लेवल्स पर, यानी एक तो हम क्लाइंट की तरफ से, दूसरा उसकी फैमिली के वेलफेयर की तरफ से, क्योंकि वो ब्लेम ना फील करें, इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि एज प्रोफेशनल्स हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और सपोर्ट सिस्टम के साथ कर पाए, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो क्रॉनिक हो गया उसको सीबीटी देना पड़ेगा। सो सीबीटी देते हुए हमारा क्या एम रहता है, उसको मैं बेक का जो मॉडल है उसको बेस बनाकर चल रही हूँ। तो वी नीड टू नो एज वेल एज अंडरस्टैंड क्या चीज, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग, और वो क्या कर रहे हैं। सो ABC जो हमारा चलता ये है, अफेक्ट, बिहेवियर एंड द कॉग्निशन, ये तीनों लेकर हम चलेंगे। और वो जो बिहेवियर है वो तो बहुत बार जो फैमिली है, जो लोग हैं, वो हमें सिर्फ बिहेवियर पर फोकस करवाएंगे, लेकिन आप और हम जानते हैं कि बिहेवियर उसका अफेक्ट और जो कॉग्निशन है उस पर बेस्ड है। सो ABC को कभी मत भूलिएगा, एज प्रोफेशनल्स हम इसको लेकर चले। ABC को साथ लेते हुए यही हमारे स्टेप्स हैं कि हम पहले थेरेप्यूटिक अलायंस बनाते हैं, जो मेरी समझ के मुताबिक मोस्ट क्रूशियल है। सभी कहते हैं भैया मत सोच, ठीक हो जा। वो किसकी बात माने? वो उसकी बात मानेगा जिसके साथ उसको कनेक्ट महसूस होता है, जिसके प्रति उसको लगता है कि वो एम्पैथी शो कर रहा है। सो जो थेरेप्यूटिक अलायंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोल सेटिंग, फिर एक एक एजेंडा लेकर चलें, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। एक्शन प्लान को साथ में होमवर्क लेते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब तक हम नहीं करवाएंगे तब तक हमारे पास रिलैप्स होता जाएगा। सो कोपिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा रिलैप्स प्रिवेंशन है, और थॉट्स और बिलीव्स उसका हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है। और तभी बिहेवियरल चेंज आएगी, और तभी हम सुइसाइडल आइडिएशन को निकाल पाएंगे। अब जब हम सीबीटी करते हैं तो दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक है कि हम जो उसकी वीकनेस है उसको खत्म करें, और दूसरा है कि रेजिलियंस को बढ़ाएं, एम्पावरमेंट को करें। मेरी एज क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि दोनों चीजों को इकट्ठा लेकर चलें तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो रेजिलियंस के ये कुछ थॉट्स हैं जो हम कह सकते हैं, अरे भैया मैं तो ज्यादा कंट्रोल में हूं, मुझे ये पता ही नहीं था। अरे आई एम नॉट बैड, आई एम एक्चुअली वेरी गुड, I think I'm very strong. I think I can manage. अरे वाह, I can trust others. ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो माइक एंड बॉम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग की बात करता है, बहुत इफेक्टिव है, करके देखिएगा। अपने आप पर भी, अपने आप को सेल्फ स्टेटमेंट्स पॉजिटिव जब हम देते हैं तो बहुत फर्क आ जाता है। सो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम जर्नल मेंटेन करवाएंगे, लेकिन हमारे एम क्या रहना है, कनेक्ट करना, डेवलप करना। डेवलप क्या करना, होप और रिलेशनशिप और पर्पस इन लाइफ, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना जो कि होगा। सो हम क्या करने हैं, कंट्रोल, कनेक्ट और कमेंड। ये करते हुए कैसे कर सकते हैं, अपनी सेंस के साथ उसको कनेक्ट करना है। बहुत बार वो नेगेटिव महसूस कर रहा है तो उसे पता ही नहीं चलता। सो पहले उसको अपना, तुम जब फ्रस्ट्रेटेड फील करती हो तो कैसा फील करते हो, उसको ये महसूस कराकर ये रियलाइजेशन दिलवाना बहुत जरूरी है। सो साथ में रिलैक्सेशन, आप और हम सबको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों इकट्ठे हाइटेंड नहीं हो सकते। तो जब रिलैक्सेशन कराएंगे तो पैरासिम्पैथेटिक को हम हाइटेन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरी फ्लाइट रिस्पॉन्स कम हो जाएगी, मेरी फाइट रिस्पॉन्स भी रहेगी, और मेरा एक्टिवेशन लेवल थोड़ा नीचे होने की वजह से अगर मैं एक्टिवेट हो भी गया तो भी मैनेजेबल रहूंगा, ओवरवेलमिंग नहीं होगी। तो रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मस्कुलर भी हो सकती है, इमेजरी भी हो सकती है। रीफोकस कराना है, रीफोकस एक्टिविटीज पे जो पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत फन दुनिया में, जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। अपनी एस्पिरेशंस के साथ दोबारा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। एम्पावर करवाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ उनको कार्ड्स बनाकर दे देते हैं जिसपे कोई मंत्रास या तुम क्या करोगे,
वो पिक्चर्स मेरी पॉकेट में रहती है तो बहुत हेल्पफुल रहता है। आप याद करोगे मुन्ना भाई में वो कहता था कि फोटो देखी और वो किया, कई बार छोटी छोटी चीज के साथ मेरा कनेक्ट हो जाता है। जब बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा आए जिंदगी में, हाथ से तो आप हम सब के आने ही आने हैं, तब उस वक्त उस ट्रॉमा को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बजाय पोस्ट ट्रॉमेटिक पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉमा इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। जब तक मुझे वो कड़वापन पता नहीं चलेगा तो मिठास कैसे मैं महसूस कर पाऊंगा। जब तक मैं ओपननेस है, जब तक हमारे पास डिस्ट्रेस को हैंडल करने का पाठ किया है, तब तक ये हो सकता है। और होगा जब नॉलेज और सेंसिटिविटी बढ़ेगी, अपनी लिमिटेशंस को समझूंगा और अपनी लाइफ में एक मकसद क्रिएट करूंगा, एक एग्जिस्टेंशियल रीजन क्रिएट करूंगा। और जब ये होगा तब मैं आप कम्युनिटी को कुछ गिव बैक देना चाहूंगा। और जब मैं कम्युनिटी के प्रति कुछ देने के लिए प्रेरित हो जाता हूं, तब मेरी लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है और तब मुझे अच्छा लगता है, मैं जीना चाहता हूं। जो भी इस एरिया में काम करेगा वो थेरेपिस्ट अपनी सेल्फ केयर का जरूर ध्यान रखे भैया, क्योंकि अपनी जब तक होप नहीं होगी तो उनको कैसे मैं प्लांट कर पाऊंगा। मैं जे खुद अपने पॉजिटिविटी नहीं होगी तो उधर नहीं पहुंच पाऊंगा। लास्ट मेरी स्लाइड है जी। आज का दिन कोविड का जमाना है, सुसाइड उस वजह से भी रिलेटेड है। उसमें कोविड में हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात ना करें, हम सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें, हम इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात ना करें, सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें। सो कंफर्ट लें, अलोन टाइम भी लें और सोशल टाइम भी लें, यानी टेलीफोन फेस टाइम वो सब करें लेकिन अलोन टाइम भी लें। ये दोनों जब इकट्ठा लेकर चलेंगे तभी हम डी कैटास्ट्रोफाइज कर पाएंगे। टीवी मीडिया बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन खुद समझे और उसको सीव आउट करें कि कितना दिखावा है, कितना एग्जैजरेशन है और कितना मेरी लिमिटेशंस है। उसके बीच में जितना मैं कर सकता हूँ, अपनी बॉडी का भी ध्यान करें, अपने माइंड का भी ध्यान रखें। सो सिर्फ घर में बंद रहने से बॉडी पे भी इम्पैक्ट है और माइंड बॉडी का जो दोनों का कनेक्शन है, आप और मैं, हम सब एज साइकोलॉजिस्ट बहुत स्ट्रांगली जानते हैं। इसको हम प्रोपिगेट करें, पॉजिटिविटी लेकर आए। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आई होप आप और मैं, हम सब पीयर सपोर्ट वॉलंटियर बनेंगे। आप और हम सब जल्दी से लोगों को पहचान पाएंगे जो एट रिस्क है और उनकी हेल्प कंस्ट्रक्टिव वे में कर पाएंगे, कनेक्शन बनाकर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। एक यहाँ पर क्वेरी आई थी फार्मर्स के प्रति। सर, हमने ये महसूस किया कि उनके बी फिनोमिना था, डेट, डिस्प्यूट, डिप्रेशन, ड्रग्स एंड डिस्फोरिया। एंड ऑल्सो जो उन्हें लगता था कि लोग उनको छोटा समझते हैं, तुम गांव के हो, तुम्हें लेविश चीजें नहीं चाहिए। इन डी को अगर हम रिमूव कर पाए, अगर हम उनके साथ कनेक्ट कर पाए, पीएचडी बनकर कर पाए, देन वी विल बी एबल टू हेल्प देम। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। सर